आपने 130वां संविधान संशोधन सुन ही लिया होगा। आइए जानते हैं कहाँ से शुरू हुआ ये। तमिलनाडु में एक मंत्री हुआ करते थे जिनका नाम था वी सेंथिल बालाजी। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इनका जेल हुआ तो तमिलनाडु के राज्यपाल ने इन्हें मंत्री पद से हटा दिया था। कुछ दिन बाद इन्हें सुप्रीम कोर्ट से रिहाई मिल गई। तब तमिलनाडु के सीएम ने उन्हें मिनिस्टर पद वापस दे दिया। यहीं से शुरू हुआ 130वां संविधान संशोधन। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने 130वां संविधान संशोधन का बिल लाया। मुझे सुनो जरा, मुझे सुनो ना। अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और उप सभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट करने वाले 10 सदस्यों के मिलकर होने वाले सभाओं की संख्या। When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया। संविधान का मत तोड़ो। That is being contained. संविधान का मत तोड़ो। भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। जो रूल 72 है वो दो चीज कहता है, एक लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, एक जनरल ऑपोजिशन ऑफ द बिल जिसकी स्वीकृति आप दे सकते हैं। और क्योंकि ये इतना संवेदनशील विधेयक है, मैं आपसे विनती करता हूं इसके ऊपर पूरी चर्चा कराई जाए। मेरे सिर्फ 2 बिंदु और है। दिस बिल, मिस्टर स्पीकर सर, एक मिनट, आपने कानूनन बात की तो कानून ये भी है कि 72 उसके बाद भी अलाउ करता हूं, लेकिन संक्षिप्त में। बिल्कुल संक्षिप्त में अध्यक्ष जी, डिटेल में चर्चा। मेरे सिर्फ 2 बिंदु और है। दिस बिल opens the door for political misuse by instrumentalities of the state whose arbitrary conduct has been repeatedly frowned upon by the Supreme Court. And finally, it throws all existing constitutional safeguards to the winds. Collective responsibility, judicial review, no confidence motion, and disqualification and conviction. And this makes this amendment excessive, unnecessary, and unconstitutional. इसलिए मैं इन तीनों विधेयकों का पुरजोर विरोध करता हूं और गृह मंत्री से मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि ये तीनों विधेयकों को वापस लिया जाए। Speaker sir, I strongly oppose the bill, 130th Constitutional Amendment Bill, as well as the other 2 bills I strongly oppose on 4 grounds. So the first ground is the bills are to be introduced according to the rules and procedure of the House. The bill is not circulated among the members. Yesterday after 1 o'clock we have received the copy of the bill, and I would like to know from the Honorable Minister, what is the undue haste and urgency in bringing such a constitutional amendment bill? What is the emergent need of having such a bill? That means the introduction of the bill itself is lacking bona fides. The bill is lacking bona fides. That is why I would like to say that this is with a mala fide intention to destabilize the opposition ruled states in various parts of the country. Number one. एक मिनट, माननीय अध्यक्ष जी, प्रेमचंद्रन जी कह रहे हैं कि जल्दबाजी में लाया गया। इसका सवाल इसलिए नहीं उठता कि मैं इस बिल को संयुक्त समिति को सौंपने की दरखास्त करने वाला हूं। इस पर संयुक्त समिति जो राज्यसभा और लोकसभा पक्ष और विपक्ष सभी सांसदों की बनेगी, जो इस पर विचार करेगी और आपके सामने लेकर आएगी। Sir, I do agree with the Honorable Minister, but at the same time, the
members are having the right to oppose the bill at the time of introduction. This is the legitimate constitutional right of each and every member to oppose the bill at the time of introduction of the bill. That is being curtailed to say. And the second one is that is disqualified. श्री वेणुगोपाल Sir, I rise to oppose the introduction of the Constitution Amendment Bill 25, the Government of Union Territory. Sir, this bill is to sabotage the federal system of this country. This bill is to sabotage the basic principle of the Constitution of this country. Sir, BJP people are telling this bill is to bring morality in politics. Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time, ये विषय नहीं है गृहमंत्री जी अब मुझे सुनो जरा मुझे सुनो गृहमंत्री जी मुझे सुनो ना पहले बैठ जाओ प्लीज हाँ गृहमंत्री जी माननीय अध्यक्ष जी मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान को मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अरेस्ट से पहले मैंने इस्तीफा दिया है। माननीय सदस्य आप बिल पर बोलिए आप 72 के नियम के तहत बोलिए सर, दिस नेम है आपका डायरेक्शन है 19 आप 72 नियम के तहत बोलिए सर, लाइक है सर, नियम के तहत बोला आप 72 सर, दिस आपका डायरेक्शन है 19A 19B। हाँ है साफ तरह कॉल भी है हाँ very clearly telling at least 1 week notice is needed for introduction of bill. Sir, I am telling that this bill is to target the opposition ruling government. This bill is to threaten the people like Nitish Kumar and Chandrababu Naidu. This bill is to blackmail. मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक और 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और उप सभापति द्वारा नाम निर्देशित करने वाले 10 सदस्यों के मिलकर